Hello and welcome to today's class. Today we have to continue the same work energy power and we will take the concluding lecture today, the lecture 4, where we will discuss the concept of power first and that will be followed by the concept of collision. There are two types of collision, elastic and inelastic collision. Okay, that we will discuss. Okay, let us take the power first. What is a power? When we call power, it directly implies that it is nothing but it is the capacity, or it is not capacity of doing what, but it is the rate of doing what. That is the work done by an instrument, by a machine, by any object, by any body in doing in some work. Okay, the rate of doing work of any machine or any object or any person is called as electric, or is called as power. So when we call power, we will directly call it is the rate of doing work. That is the amount of energy spent in unit time. Energy spent is work done, you know it well. Therefore, that we call the amount of energy spent, that is work done. Work done by any body in unit time is called as your power. So it is denoted by P equal to W upon T. This is the average work upon average time, what we call. And naturally, if we rather call that your work is your force into displacement, dW equal to this much. Force into displacement, then we can call power equal to dW upon dt. Okay, and therefore we write F dr upon dt, and that means F into dr upon dt. This is your velocity. This is also an expression for power. तो जैसे आपको मालूम है कि जब हम लोग कहते हैं कि पावर, तो पावर हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क. वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है. तो इसका मतलब पावर भी स्केलर हो गया. तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. So it is not only described by this formula, the general formula work upon time, but also it is described as the scalar product of force and velocity. अगर किसी का बॉडी का velocity दे रखा है और कितने फोर्स लग रहा है उस पर वो दिया है, तो we can also find out the power of that machine. That is कोई बॉडी पे कोई फोर्स लगा तो उसको मोशन में ला रहा है, तो कितना फोर्स लगा रहा है वो मालूम है, कितने वेलोसिटी से जिस पर लगा रहे हैं वो चलने लगा. तो that product of force and the velocity by which the second body is moving, we call it as the power of the first body. या मैंने क्या कहा, पावर ऑफ फर्स्ट बॉडी. एक बॉडी है जो, मैं जैसे मान लीजिए कि मैं इस दीवार में धक्का दे रहा हूँ. आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस. ओके, आई एम जस्ट नॉकिंग ऑन द वॉल. मेरे एनर्जी स्पेंड हो रहा है क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ. लेकिन कितने टाइम में कर रहा हूँ, वो जितने टाइम में सेकंड भर में वो नैनो सेकंड के फॉर्म में हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा पावर. तो मैं अपना पावर यूज करूँ, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क होते हुए नहीं दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो वो आवर पावर इज टोटली वेस्टेड. ये बात बिल्कुल क्लियर है. बट आई एम स्पेंडिंग माई वर्क. आई एम डूइंग सम पावर. आई एम अप्लाइंग सम पावर. वो पावर तो है. वर्क अपॉन टाइम, टाइम बहुत कम सेकंड के लिए होता है और वर्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो पावर भी हमारे जो पावर जो भी हम यूज करें, दैट इज ओनली डिसिपेटेड, ओनली लॉस्ट, नथिंग मोर. तो ये आ जाता है. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट?
unit of power equal to joule per second. Joule per second, and we can just call it as watt. तो यूनिट ऑफ पावर को हम लोग वाट से कहते हैं. देयर आर अदर यूनिट्स आल्सो लाइक 1 किलोवाट equal to 1000 watt. Another is horsepower. ये बड़े बड़े इंजनों के लिए, बड़े मशीन्स के लिए हॉर्स पावर यूज करते हैं. देयर वी डोंट टेक वाट और किलोवाट लाइक दिस, बट हॉर्स पावर को हम लोग एचपी लिखते हैं. 746 वाट. ये एक बहुत पहले जमाने में एक थोड़े से चला कर देखा गया कि कितने पावर ये यूज कर सकते हैं. तो एक एवरेज देखा गया कि 746 वाट का जो है वो जो है वर्क एक घोड़ा आराम से कर सकते हैं. तो उसको उसी के नाम से बता दिया गया कि 1 हॉर्स पावर इज दिस. तो दिस इज अंडर यूनिट ऑफ दिस. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. तो ये कितना हो जाएगा? जूल का हो जाएगा आपका ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t. दैट मीन्स ml स्क्वायर t माइनस 3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर. तो इस तरह आपने डायमेंशन ऑफ पावर भी देख लिया. और इस तरीके से आप लोग जब पावर देखते हैं तो वी कैन हैव एनीथिंग लाइक दिस. सपोज आई से दैट I can lift is around 10 kg of water. I am lifting 10 kg of water to height of 2 meter. To height of 2 meter. तो मैं 10 किलो वाटर को 2 मीटर तक मान ली उठा सकता हूँ. मैं खड़े करते नहीं उठाऊंगा, उतना हाइट ही नहीं है. You can see that 6 meter is very high. It is more than 6 feet. तो मैं नहीं, मान ली कहीं गड्ढे में कहीं पानी है, वहां से मैं उसको उठा रहा हूँ बाल्टी से. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई एम लिफ्टिंग अराउंड 10 किलो ऑफ वाटर टू से 1 मीटर. मैं 2 मीटर में नहीं जाता हूँ, 1 मीटर हमने उठाया. तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वर्क आई एम डूइंग, हाउ मच work is done by me. W equal to mgh. W equal to your mgh, and m is your 10 kg. G is 10, and height I am talking about 1 meter. That is 100 joule. If I say that I am taking it for 10 minutes only. I took only 2 seconds to lift that water. Then my power will be W upon T, that is 100 joule upon 2 seconds. It is 50 watt. तो ये मेरा पावर हो गया. तो आई एम अगेन रिपीटिंग माई क्वेश्चन. व्हाट आई सेड दैट आई एम लिफ्टिंग 10 किलो ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 1 kg, टू अ हाइट ऑफ 1 meter. To a height of 1 meter, I am lifting 10 kilo of water, 10 kg of water. Then what is my power? And I am taking time 2 seconds. The time taken by me is 2 seconds. Then naturally, rate of doing work is W upon T, 100 joule upon 2 seconds. We get 50 watt. तो ये इससे हो जाएगा what is power. पावर का जो मीनिंग है वो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. जब पावर के कॉन्सेप्ट हम लोग जब देख लेते तो ऑब्वियसली हम लोग एक कुछ क्वेश्चन और कुछ देखेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होगा. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने का प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू नो दिस टाइम all the questions will be given in objective form, but in objective also there are many difficult questions which you have to solve yourself. तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज there are many numericals which will come in the objective part of your paper. So let us take some question. I am just telling you the question first. What is the question? The human heart discharges.
the human heart discharges 75 ml of blood at each beat against a pressure of 0.1 meter of mercury. Calculate calculate the power of heart, assuming that pulse frequency pulse frequency is 80 beats per minute. Density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the question. You can just read the question carefully. This is question. Question number 2. 1 I have already explained. The human heart discharges 75 ml of blood at each beat against a pressure of 0.1 मीटर ऑफ मरकरी. 0.1 मीटर ऑफ मरकरी ये प्रेशर का यूनिट होता है मरकरी कॉलम के टर्म में. तो आज अंदर एच रो जी करके मैं इसको उस पर चेंज कर सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ इस प्रेशर को. ठीक है. तो ये एच दिया है 0.1, रो इतना दिया है डेंसिटी का रो, और जी तो 10 मान के चलेंगे तो वी कैन एज्यूम दैट वी कैन फाइंड आउट. ओके. और जो इसमें जो दिया हुआ तो वॉल्यूम कितना दिया है 75 ml ऑफ is the volume. तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसका डिटेल्स देखेंगे. तो व्हाट वी कैन राइट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर बीट्स. ठीक है. डिस्चार्ज पर बीट कितना दिखता है 75 ml मिलीलीटर. दैट मीन्स 75 into 10 to the power -6 मीटर क्यूब. ठीक है. इसको मैंने उसमें चेंज कर दिया. एंड आफ्टर दैट प्रेशर इज ऑलरेडी गिवन. दिस इज योर V. Pressure is given 0.1 meter of mercury, that is HDG. What we have H rho G 0.1 into 13.6 10 to the power 3, and G I take G as 9.8. को 9.80 मान के चलते हैं. तो all together we get the value of pressure. Okay. One we get value of pressure, and then also it is written that is work done per beat. Work done per beat equal to PV. ये हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. और तो वर्क डन इन 80 बिट्स, क्योंकि 80 बिट्स पर सेकंड आप पर मिनट बता रहे हैं. तो वर्क डन इन 80 बिट्स डब्ल्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू P is 75 10 to the power -6, and this is your 0.1 into 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8.
you can use your calculator to calculate it properly. I am just writing down what is this is the work done for 80 bits और यहाँ पर लिखा है 80 bit per minute. तो पावर आपको पूछा गया है, ये क्या कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट एज्यूमिंग दैट द पल्स फ्रीक्वेंसी इज दिस मच. तो पल्स फ्रीक्वेंसी 80 बिट्स कब बनता है, 1 मिनट में बनता है, माने 60 सेकंड में बनता है. तो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू therefore power equal to your W dash upon time. W dash is just 80 into 75 10 to the power sorry 0.1 into 13.6 और 10 to 9.8 10 to the power कितना होगा, -3 हो जाएगा. 10 to the power -3 क्योंकि यहाँ पर -6 यहाँ +3 है, तो -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 minute means 60 सेकेंड. तो इट कम्स आउट टू बी 1.33 वाट. जब कैलकुलेट करिएगा तो 1.33 वाट. तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बता दिया, और इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा so that you can have the practice of such numerical also in case of such numerical your comes in your examination in the form of objective question. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्हाट इज योर पावर. तो क्वेश्चन फिर से देख ले. क्वेश्चन इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बन सकता है. ऑब्जेक्टिव में 4 वर्क दे दिया, तो उसमें आपको बार बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि विच वन इज क्लोजर टू योर आंसर. जैसे आपने आंसर देख लिया कि 1.6 1.2 ऐसे आ रहा है, बाकी 4 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आ रहा है, तो 1.3 वाला आपका आंसर सही मान लेंगे. ठीक है, so with that we have taken what is power itself. After knowing the power, we must know the collisions. That is also part of this chapter. We will now discuss what is collision, and for that we will definitely discuss the types of collision first. Okay. Yes. Now we have to discuss what is collision. तो कोलिजन जैसे नाम से मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट मान लिया मूव कर रहे हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं टकराव हुआ है, एक दूसरे से आपको भिड़न थी, तो हम कह देंगे ये कोलिजन हुआ. Two trucks are coming in opposite direction. They just collide with each other. They can in fact apply some force on one another. This could be the case. In the same case, suppose one already car is there, stationary car is there. A big truck come and then it crashes the first one. It can also collide with the case. मैं खाली एक्सीडेंटल पॉइंट से नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा आप खेलने में देखते हैं. बिलियर्ड बॉल है, स्नूकर है, यू कैन जस्ट सी विद द स्टिक, यू कैन वेरी इजीली aim the ball to hit other ball. Carom board hai, there also we use the striker to strike given carom points. Okay, so that they could all move to the given ball. That is our points where by which we can score. Okay, there are many types of collision is there. और जो गांव में जो कंचा लोग खेलते हैं, जो गोल गोल स्फेरिकल मार्बल्स होते हैं, तो व्हेन वी टेक वन उसको एक कंचों को ऐसे करते हैं, या वी जस्ट हिट वन कंचा टू अदर, वन स्फीयर टू द अदर, देन आल्सो सम काइंड ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस. तो कोलिजन होता है. कोलिजन कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का कोलिजन. वन इज इलास्टिक कोलिजन, अदर इज इन इलास्टिक कोलिजन. ये इलास्टिक कोलिजन, ये इन इलास्टिक कोलिजन. तो कैसे मालूम होगा, जैसे मान लो आपने देखा कि अगर बहुत ध्यान से देखिए, आपका फ्लोर कैसे भी, यहाँ से आपने एक कंचा एक कोई बॉल फेंका, नीचे गया, फिर उतनी हाइट तक वापस आ गया. देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. जितना वेलोसिटी से, जितना इसको वेलोसिटी गेन किया करना था, उतने वेलोसिटी से फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, फिर इतने हाइट तक पहुंचा. Here we call that it is the elastic collision. The elastic collision में क्या होता है कि kinetic energy must be conserved. यहाँ पर खास बात क्या होता है कि kinetic energy is conserved. In elastic collision, kinetic energy does not, energy is not conserved, is not
ये कंजर्व नहीं होता, ठीक है। तो ये कंजर्व होता है और यहाँ पर कंजर्व नहीं होता। नेक्स्ट केस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, और इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम conserved here also we will like that। तो काइनेटिक एनर्जी एक हुआ जो कि कांस्टेंट होता है केवल इलास्टिक कोलिजन में, और काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी कांस्टेंट इन केस ऑफ योर इन इलास्टिक कोलिजन। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 मैंने कहा कि लीनियर मोमेंटम। भैया लीनियर मोमेंटम जब भी दो बॉडी इन कांटेक्ट होता है, तो पिछले लॉज ऑफ मोशन में हमने ऑलरेडी बताया कि whenever two bodies interact with each other, the one applies a action to other in turn will apply the reaction force to the first। तो वहां पर जब टू बॉडी सिस्टम जब भी होता है तो एक्शन रिएक्शन का मामला होता है। जहाँ एक्शन रिएक्शन का मामला होता है तो लीनियर एनर्जी तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। आप लोग ये सोच सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है उसके हिसाब से हम लोग कहते हैं कि एनर्जी हमेशा हर सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को कहते हैं कि इलास्टिक में कांस्टेंट नहीं रहता, इन इलास्टिक में इन इलास्टिक में कांस्टेंट नहीं रहता और इलास्टिक में कांस्टेंट रहता है। ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हो सकता है कुछ जो चीज लॉस और कुछ कम हो तो वो किसी और फॉर्म में बदल जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी या हीट एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट इज इन इलास्टिक कोलिजन। ये दो चीज आ गया, ठीक है। ओके, नाउ वी फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट डायमेंशन टू वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट हम लोग अभी वही डिस्कस करेंगे, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। हाउ वी डिफाइन दिस, हाउ वी एक्सप्लेन दिस, लेट अस सी। वन डायमेंशनल elastic collision between two bodies, okay, I am talking about one dimensional elastic collision between two bodies. For that I am just considering this is the path, this is the path, this is body A, it is its mass is m1, it's moving with u1 velocity. Another body in its path is moving in the same direction with velocity u2, its mass is, it is b, its mass is m2। कुछ देर के बाद ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे ड्यूरिंग कोलिजन, ए एंड बी, इट इज ड्यूरिंग collision, and after that again they will keep on moving but with different velocities. A and B, it is moving with your velocity of v2 and it is moving with velocity v1, like this, okay, this is what we have। so by means of concept I am talking about one dimensional elastic collision, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। तो दो बॉडीज के भी इलास्टिक कोलिजन होगा, तो ये एक सिचुएशन दिखाया हुआ है। तो अब इसके मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो जाएगा, ठीक। अब मैं m1 एक साथ कर लिया, m1 एक साथ कर लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा u1 माइनस v1, और m2 ये किया
तो V2 माइनस U2 तो किया जाएगा। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, इसका ओनली इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ योर काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन total kinetic energy before collision equal to total kinetic energy after collision. Why I am taking this condition? Because we have to ultimately take the elastic case, elastic collision. तो elastic में होता है. Now, okay. Now here we have 1/2 m1 u1 square m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus m2 v2 square, like this. Now we will again recollect them together, m1 m1 m2 m2, half half कैंसिल हो जाएगा तो m1 एक साथ हो जाएगा तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और ये क्या हो जाएगा v2 प्लस v1 v2 प्लस दिस वन u2, ये आ जाएगा। तो अब देखिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। if we divide equation 2 by equation number 1, then what we get? If we divide, then naturally we will get this one, that is yes u1 plus v1 equal to v2 plus u2, or in other words u1 minus u2 equal to v2 minus v1. This is relative velocity of first body with respect to second before collision equal to a relative velocity of second body with respect to first body after collision. Okay, so you have this particular case that यहाँ पे क्या relative velocity of first body before collision और relative velocity of second body after collision. तो in general हम लोग क्या सकते हैं, ये क्या है velocity of approach और ये है velocity of separation, क्योंकि इसके बाद यहाँ पता आ रहे थे एक दूसरे की तरफ, तो velocity को approach हुआ, ये v1 minus v2 sorry u1 minus u2 was velocity of approach and v2 minus v1 क्या है, ये है आपका velocity of separation. So we can say velocity of approach equal to velocity of separation. So in that way we have seen what is velocity of approach and what is velocity of separation. तो इस टाइप से आपने देख लिया, ये एक पोर्शन हुआ। तो अब आपके पास दो फॉर्मूला हो गया, वन फॉर्मूला इज दिस वन, ओके, एंड अदर फॉर्मूला इज दिस वन. You have got two formula. One is u1 minus u2 equal to this much, other is your this. So we have to remove all the formulations to get a given equation for u1 and u2 respectively. We will just remove each term in between. Okay.
Now we have removed the intermediate terms, all the things which were there. This is V2 minus V1. Okay, तो ये सब हम लोग ने मिटा दिया. तो what will happen to the next step? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये चीज जब यहाँ पर हम कोई चीज को भी हम देखेंगे तो वी कैन राइट u1 इक्वल टू v2 माइनस v1 plus u2. You have this bit, and you can place the value of this in given equation. In equation number 1, we have m1 here v2 minus v1 plus u2 equal to m2 v2 minus u2. तो इस टाइप का आपका आ जाएगा. तो आप इससे रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफेक्ट. Resultant effect is very simple. We can get both u1 and u2 in terms of a common velocity u1 and u2. तो हम लोग इससे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, v1 को v2 के टर्म में लिख सकते हैं सो ऑन. तो हमारे जनरल जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर से 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी बताया था. तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we must have a common thing. ये आप लोग को इसका डेरिवेशन तो ज़्यादा नहीं आएगा, बट यू हैव टू नो. जब इसमें जब प्लेसमेंट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये u2. ये जो हमारा निकला v1. इसी तरह से v2 निकलेगा. v2 निकलेगा आपका m2 माइनस m1. दिस इज योर m2 माइनस m1 होल अपॉन m1 प्लस m2. Okay, and this is your u2 plus 2m1 m1 plus m2 and this is your u1. जब यहाँ पर v1 था तो यहाँ पहले u1 होगा, जब यहाँ v2 होगा तो यहाँ पहले u2 होगा. this is u2, this is your u2 and this is your u1. this is u2 यहाँ पर है, यहाँ पर u1 है. यहाँ पे जब v1 है तो नेचुरली पहले m1 माइनस m2 है, ठीक है. जब v2 होगा तो m2 माइनस m1 होगा, ध्यान रखने वाली चीज. यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u2 होगा. दूसरे में 2m2 है, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2m2 है, और यहाँ पर जब v2 है तो यहाँ 2m1 है. और ये उसी के हिसाब से वेलोसिटी भी होगा, ये u1 यहाँ पर u2 एंड सो ऑन. तो इसका डेरिवेशन इन्हीं सब से आया, दैट यू हैव नॉट टू नो दिस. So this is all about the one-dimensional collision. The one-dimensional collision of between two body, one-dimensional elastic collision between two bodies that we have discussed today. Okay. In the next lecture, definitely we will discuss two-dimensional elastic collision, and we have to also see the inelastic collision. That is, the only one-dimensional inelastic collision is there in the syllabus. That we will discuss in the next lecture. With that, you might have seen this is quite mathematical, and mathematical thing is always important for objective type of question. With that, we have completed today's lecture. Hope you must see the video completely, repeatedly. Once you see the video, please share it with your friends and relatives so that other could also enjoy the physics of that. With that, we have completed today. Thank you.